Good morning, plus one class. In the last lecture, we discussed about the uncertainty in the measurement. I told you that when we are measuring anything in the lab, any instrument, any chemical in the lab, the values may not be correct. There may be some error, or we call it uncertainty. And these uncertainty values depends. Maybe the worker is not skilled, or maybe there is a limitation, there is an error in the measuring instruments. Okay. And further, today we'll discuss about the two factors. When we are measuring anything, there are two factors which is connected with the measurement, and these two factors are accuracy and precision. So before giving definitions of these two factors, let's take an example, and I think this example help you to explain or to just understand these two topics. Let's suppose I have a wooden table, ठीक है, and its length is 20 meter. I have a wooden table and its length is 20 meter. So 20 meter becomes its correct value. इसकी actual value कितनी है मान लेते हैं 20 meter. Okay. And then I asked two students, student A and student B, to measure the length of the table once again. Student A measured 19.2 meter and student B measured 20.1 meter. Then I gave them one more chance to measure the length of the table, and this time student A measured 19.3 meter and student B measured 19.9 meter. Okay. Now have a look on the measurements values of A and B. So we realize that these two values are very close to each other, but it is very far from the value that is correct value. Okay. So it means student A has done the work very precisely. तो यहाँ पे हमने क्या word use कर देना है precision. ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ precision. When the measurements, different measurements values are very close to each other, but it is very far from the correct value, then this is known as precision. Okay. And let's have a look on the measurement of student B. I think these both the measurements are very close to the correct value and even very close to each other. Okay. If the measurement value are very close to the correct value, then we talk about accuracy. It means the student B has done the work with accuracy. ठीक है, this time accuracy word आ गया. And also these two values are very close to each other. It means he also done the work with very precisely. So in student B, both the factors are involved, accuracy as well as precision. But in student A, there is only one factor, that is precision. Okay. I think आपको समझ में आ गया है कि what is precision and accuracy. ठीक है, एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपकी ना क्लास में से. ठीक है, मान लेते हैं आपकी टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया है 50 मार्क्स का. ठीक है, और उसने वो टेस्ट आपको 2 बार लिया, 2 times टेस्ट लिया 2 weeks में, और 50 मार्क्स क्या रखा उसने, मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं. स्टूडेंट ए ने ना दोनों ही टाइम 0-0 मार्क्स लिए. कितने कितने मार्क्स लिए, 0-0 मार्क्स लिए. एक्यूरेट वैल्यू कितनी है इस बार, 50. ठीक है, इसने मार्क्स कितने लिए, 0, यानी कि इसका करेक्ट वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं. तो लेकिन इस स्टूडेंट ने काम कैसे किया है, बहुत ही प्रिसाइजली. दोनों बार इसने क्या किए, 0-0 मार्क्स लिए. ठीक है, तो इसने कैसे काम किया, बहुत ही प्रिसाइजली. लेकिन इसने एक्यूरेसी से काम बिल्कुल नहीं किया है. और स्टूडेंट नंबर बी जो है उसने 50 out of 50 लिया. ठीक है, और एक बार उसने 15 मार्क्स ले लिए 50 में से. तो फर्स्ट टाइम उसने कैसा काम किया है, करेक्ट काम किया.
ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट उसने मार्क्स लिए ना 50, तब उसने एक्यूरेसी से काम किया है, और सेकंड टाइम उसने एक्यूरेसी से काम नहीं किया है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू देन द वर्क इज डन विद एक्यूरेसी, बट इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर नॉट क्लोज टू करेक्ट वैल्यू बट क्लोज टू देयर डिफरेंट मेजरमेंट्स, यानी कि वर्क इज डन विद द प्रिसीजन। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी? रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, और व्हाट इज प्रिसीजन? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है, एक पर्सन ने 3-4 बार, जरूरी नहीं उसने एक बार ही मेजरमेंट की, उसने 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, तो जितनी बार भी उसने मेजरमेंट्स की हैं उनकी सभी की वैल्यूज में क्लोजनेस आ रही है। ठीक है, अगर हम उसकी एवरेज भी लेते हैं तो एवरेज वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए? उनके क्लोज आनी चाहिए। और प्रिसीजन में हमने कौन सा वर्ड यूज नहीं किया है? करेक्ट वैल्यू का। ठीक है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स टू ईच अदर एंड क्लोजनेस टू देयर एवरेज वैल्यू। दिस इज अबाउट एक्यूरेसी और प्रिसीजन, और ये बहुत बार आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन प्रिसीजन, डिफाइन एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, टॉपिक है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू ना। मान लेते हैं वी हैविंग अ वेइंग मशीन, है ना, वेइंग मशीन होती है ना। ठीक है, वहाँ पे ऐसे ग्रेजुएटेड होती है, वो नंबरिंग लगी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे नीडल होती है। और जब भी आप स्टार्ट करते हो वेट लेना, ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को वेट करते हो तो नीडल कहाँ पे होनी चाहिए? 0 पे होती है, तभी एक्चुअल आपकी रीडिंग सही आती है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारे पास ये वेइंग मशीन है, इसकी नीडल जो है वो 0 की बजाय ना 0.5 पे है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, कहाँ पे है? 0.5 पे है नीडल, और आपने कुछ भी मेजर किया है, ठीक है, उसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 20 kg। मान लेते हैं कितना वेट आया? 20 kg आ रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका वेट 20 kg नहीं होगा ना, बिकॉज वो स्टार्टिंग से कहाँ पे थी? 0.5 पे थी, तो डेफिनेटली आपकी इस 20 kg में 0.5 एक्स्ट्रा है, तो एक्चुअली में कितना हुआ वेट? 19.5 kg। तो यहाँ पे एरर कितना आ रहा है? 0.5 kg का एरर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इस मशीन के थ्रू, या ठीक है इस वेइंग मशीन के थ्रू जब भी आप मेजरमेंट करोगे, आप में 0.5 का एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई एरर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कंसिस्टेंटली आता ही आता है, दिस इज नॉन एज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन कैसे किया गया है? इट इज कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर एसोसिएटेड विद फॉल्टी इक्विपमेंट। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट अगर आपकी फॉल्टी है तो उसमें वो एरर रहेगा जब भी आप वहाँ से कोई भी चीज़ मेजर करोगे। दिस इज नॉन एज सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। क्या होती हैं साइंटिफिक नोटेशंस? ठीक है, इसको भी सिंपल एग्जांपल समझते हैं हम ना। जैसे ना मैंने लिखा है, मान लेते हैं कोई भी आपके पास मेजरमेंट है, उसकी वैल्यू आ रही है 26000000 इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मीन्स इतनी वैल्यू लिखना है, बार बार इतनी वैल्यू लिखनी पड़ रही है आपको। ठीक है, तो क्यों लिख के हम इतनी बड़ी वैल्यू? तो इसको क्या किया? सिंप्लीफाई किया गया ऐसी वैल्यूज़ को ना। क्या किया गया? सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई कैसे किया गया? ऐसी लार्ज वैल्यूज़ को या बहुत कम वैल्यूज़ को, 0.000009, ये लिखना भी थोड़ा सा क्या है? कंफर्टेबल नहीं है लिखना। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ को अच्छे से ये डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए कैसे लिखा गया? इनको लिखा गया n × 10⁻n की फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ? व्हाट इज n × n की पावर 10 10 की पावर n? इसमें जो n है ना, ये एक नंबर है, इट इज़ अ नंबर, और जिसकी वैल्यू जो है 1 या 1 से ज़्यादा होगी, और 10 से क्या रहेगी? हमेशा कम ही रहेगी। क्या रहेगी? 10 से कम रहेगी। 1 से क्या होगी? ज़्यादा, इक्वल टू क्या होगी? 1। ठीक है, और 10 से क्या रहती है? कम। लेकिन अब
इसको कैसे लिखा जाए n की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना होता है, आपको पता है 2 6 इतनी जीरोस के बाद आपको पता है एंड यहाँ पे हुआ है, यानी कि डेसिमल यहाँ पे लगा होगा, तो आपने डेसिमल को मूव करना है जब तक कि कब तक आपने इसको मूव करते रहना है, जब तक कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है 1 और 10 के बीच में ना आ जाए। ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, 2 6 ये वैल्यू मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है एन की फॉर्म में, और मुझे डेसिमल को, ठीक है, मूव करना है, तब तक मूव करना है जब तक कि ये वैल्यू जो है 1 और 10 के बीच में ना आ जाए। बहुत सिंपल है वैल्यू को। ठीक है, डेसिमल को मूव करो। 1 अभी तक नहीं बनी, 2 3 4 5 6 7, अभी 26 आ रहा है, मोर देन 10 है 7, और ये 8। ठीक है, तो डेसिमल अगर मैं 2 के बीच और 6 के बीच में लगाऊं, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, देखो ज़रा, 2.6 1 से ज़्यादा है ना। ठीक है, और 2.6 लेस देन 10, तो ये वैल्यू जो है 10 से कम हो गई है। अब मुझे ना इतने सारे ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ जितने प्लेसेस आपने मूव किया ना इसको, उतने, देखो 2.6 लिखा मैंने, इसको इतना समझ में आ गया। दिस इज, ये मेरे पास क्या आ गया, n, इतना बन गया मेरे पास n, इंटू 10 की पावर n है, तो इंटू 10 की पावर n, n जो है, ठीक है, इट इज़ एनी एक्सपोनेंट है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल जो है वो किस तरफ जो है प्लेस किया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव किया, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किया है। तो देखो मैंने अभी यहाँ से मूव किया डेसिमल ना, तो मैंने अभी काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस तक इसको मैंने मूव किया लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि आपने वैल्यू क्या की है, आपने वैल्यू क्या की है, कम की है, तो उतना ही आपको उसको पॉजिटिव, तब पॉजिटिव में आएगा। 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8। आई थिंक आपने मैथ में इतना तो पढ़ा ही है ना, डेसिमल मूव करते हैं तो जो पावर आती है वो किस तरह से आती है, नेगेटिव कब आती है और पॉजिटिव कब आती है। अब आप ना इसको जब सॉल्व करोगे ना 2.6 10 की पावर 8 को, डेफिनेटली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 6 और जितने भी जीरोस यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम किसी वैल्यू को लिखते हैं, यानी कि दैट वैल्यू इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, ठीक है, इन विच द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 की पावर n। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी 9th में पढ़ा है एवोगैड्रो नंबर, पढ़ा ना थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर जो था वो एक्चुअली में ये है, उसकी वैल्यू 0.6022 और इतने सारे क्या है, इसको जीरो लगे हैं। ठीक है, और जब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा गया तो ये आपको पता है किस फॉर्म में आएगा। अगर आप यहाँ से डेसिमल, ठीक है, प्लेस करना शुरू करोगे, आप यहाँ पे पॉइंट लेके आओगे और यहाँ पे पॉइंट लाने पे आपका 22 नंबर्स आएंगे, तो 6.22 कितने प्लेसेस तक आपने मूव किया लेफ्ट साइड, 23, तो 10 की पावर कितनी होगी, 23। जब राइट से लेफ्ट में लेके आओगे तब पॉजिटिव में, और जब लेफ्ट से कहाँ लेके जाओगे, राइट में, तब नेगेटिव से। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक और, ये। ठीक है, इसको क्वेश्चन आपको आएगा अगर कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो कैसे लिखोगे। अब आप ना, आपने यही करना है कि इस पूरे को ना n की फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले, और n जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 और 10 के बीच में। तो अभी देखो यहाँ तक प्लेस किया तब भी 1 से कम बन रही है, यहाँ प्लेस किया नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और ये देखो जब यहाँ पे आप पॉइंट लेके आओगे वैल्यू कितनी आएगी, 2.9, एंड इट इज़ बिटवीन 1 to 10, तो 2.9 इंटू करोगे, कितने प्लेसेस मूव किया आप राइट साइड, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर। ठीक है, अभी क्या आएगा इस बार, -5 आएगा, बिकॉज आपने छोटी वाली को बड़ा किया ना, तो उसको इक्वल करने के लिए आप माइनस लगाओगे। जब भी आप लेफ्ट से कहाँ चलोगे, राइट में, तब नेगेटिव में चलेगा। तो इस तरह से आप
साइंटिफिक नोटेशन में आपको आ सकती हैं कि राइट द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो इस तरह से लिखोगे आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन राइट द एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ इट्स साइंटिफिक नोटेशन।